start दिख रहा है ना? Good morning everyone. So my name is Dr. Ritika Singh. I'll be teaching a very interesting topic today. It's a very basic topic. You'll learn about the history of how psychiatry came into force. What was the model expected and accepted before the evolution of psychiatry. Then the biopsychosocial model of psychiatric illnesses and a brief introduction to what organic psychiatric illness is. So we'll be covering it under the following headings. Starting with, when we talk about introduction, the psychiatry is as such, the word psychiatry means psych, which is mind, and iatric means healing. So healing of mind. Okay, so it is a Greek word. And when we talk in broader aspects, psychiatry is a subject. It deals with diagnosis, treatment, and prevention of mental health illness. Okay. Similarly, psychiatry के बाद एक और शब्द आता है psychology, in which you learn about the behavior and the mental process and cognitive structure of human being. Okay, how individuals think, feel, behave in different situations. That is what psychology consists of. Again, then psychiatry is something I told you which deals with what mental health is. When we talk about the definition of mental health, WHO says that it is defined as state of well-being in which every individual realizes his or her potential, can cope with the normal stress of life, and can work productively and fruitfully, and is able to contribute to his or her community. So what does this mean? That mental health doesn't just mean कि कोई mental illness absent है, ठीक है? Just the absence of mental illness doesn't mean you are mentally healthy. So these all the points that you are able to understand, you are able to conduct yourself in a good proper behavior. You can contribute to your family, to your society in a way which makes it fruitful in your future. So this is what all are the constituents of mental health. Okay. What is mental illness? Now, the deviation from whatever we read right now, okay, mental illness involves changes in emotion, thinking and behavior, or a combination of all, okay. It can, mental illness can be associated with distress or problem functioning in social work or family activities, alright. So, after just having a brief introduction about what mental health and mental illness is, let us move towards what the historical aspect of psychiatry says. So in the initial era, in the very early age, it was believed that psychiatric illness were the punishment given from gods. So the psychiatry as a subject was looked with skepticism, and no proper understanding and work was done on its behalf. So, initially viewed with skepticism and often intervened with religious or supernatural belief. With time, the development of psychiatry came into play, and now it is being considered a medicine specialty, and more work is still going on. Still, psychiatry in its budding phase. We are still learning, and there's still more to explore in this branch. So history की बात करें तो it is marked by the transition from asylum to modern hospital, advancement in psychopharmacology and its integration with general medicine. So let us move on to the first topic. How does psychiatry came into play and what is its contribution into the society? So ancient and classical period, as I told you earlier, the mental illness were often attributed to supernatural forces, divine punishment or demonic possession. Be it any society, whether you're talking about European society, whether you're talking about old age English society or Indian society or any other, the idea was similar in every aspect. ठीक है कि it is because of something religious punishment is given to an individual. ठीक है. Treatment was primarily spiritual or religious, including exorcism, herbal medicine and trepanation. Trepanation is something, it was believed कि जो आपका brain है उसमें कुछ भर गया है, तो whoever some person used to drill a hole in the top of your head to release that pressure. Okay, it was very difficult process to carry out. So as this picture depicts the exorcism being done, and this is what trepanation looks like, just a rough picture. Okay, so Hippocrates was the one who suggested that this mental illness has something to do with bodily fluids. Hippocrates is someone who divided the body into 4 fluid structure, and according to them, the different symptoms and personality characteristics were developed. जैसे कि जिसका ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो बोलते थे वो डिप्रेस ज़्यादा रहेंगे, जिनका रेड वाला बाइल ज़्यादा है तो उसके लिए बोलते थे दे आर मोर एग्रेसिव एंड पैशनेट. ठीक है.
Again, similarly, there was another scientist, Galen करके, he also contributed to the fact that there is some relationship between mental state and physical state, and he advocated the connection between the brain and mental illness. Due to supernatural explanation, especially in Europe, the mental illnesses were, not seen very in a illness sort of way. It was more like the people are possessed. They were treated like witches and warlords. Okay, and the punishment also was very cruel for them. But when we talk about Islamic golden age, they were the people who used to believe in therapy वाला section. तो बीमारिस्तान करके उनके हॉस्पिटल्स के नाम होते थे जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता था. They were first to what we call introduce music therapy, art therapy for the patients over there. This is what a rough picture of Bimaristan looks like. Then during the Renaissance period, when the physician and everything was getting active, though the challenging idea that the mental illness are caused by demonic possession was challenged by John Weir. Okay? With time, there is a hospital called Bethlehem Royal Hospital, Bedlam. ये लंदन में है. इसका प्रॉब्लम ये था कि ये असाइलम जैसा ट्रीट करता था, हॉस्पिटल जैसा ट्रीट नहीं करता था. पेशेंट्स को बहुत बुरी तरीके से जहाँ पे चेन करके रखा जाता था. नॉट अ वेरी गुड रेपो द हॉस्पिटल हैड एट दैट टाइम. विद टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आए. ये बेडलेम हॉस्पिटल लंदन में ऐसा दिखता है. देन देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड फिलिपी पीनल. ठीक है, he introduced that the moral treatment होना चाहिए पेशेंट का. ठीक है, सिमिलरली विलियम टुके करके इंग्लैंड में थे. he also emphasized the same. फिलिपी पीनल was someone who said कि अनचेनिंग ऑफ साइकाइट्रिक पेशेंट होना चाहिए, उनको चेन में नहीं रखना है बात की. ठीक है, सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कैंपेन किया है कि हॉस्पिटल होना चाहिए, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स होना चाहिए रेदर देन असाइलम. पेशेंट को डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करना चाहिए. ठीक है, दिस इज फिलिपी पीनल. दिस इज हाउ द पेशेंट्स वर चेंज्ड. नाउ मॉडर्न साइकाइट्री की बात करें, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, एमिल क्रैपलिन वाज द फर्स्ट जिसने सिस्टमिक क्लासिफिकेशन किया कि स्किज़ोफ्रेनिया अलग होता है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस अलग होती है. ठीक है, फिर सिगमंड फ्रॉइड आए. ही इज समवन हु इज पायनियर इन साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस. ठीक है, तो ही ब्रंग फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, साइकोएनालिसिस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. ठीक है, ये सब चीजें कैसे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. This is the picture of them. So with time आपका फर्स्ट एंटीसाइकोटिक जो डेवलप हुई थी वो थी क्लोरप्रोमाजिन. एक्चुअली इसको ये था तो आपका क्या बोलते हैं सिडेटिव और वो कामिंग इफेक्ट के लिए. इसको एज एन एनेस्थेटिक भी यूज किया जाता था पेशेंट्स को, जिससे कि वो काफी देर तक काम रहते थे. तो इसी को ही इन लोगों ने क्या बोलते हैं देखा कि पेशेंट इतना काम रह रहा है तो क्यों ना हम साइकेट्रिक पेशेंट को ये दवाई दें. तो उसको देने के बाद उन्हें लगा हाँ दिस इज वर्किंग समथिंग गुड फॉर द पेशेंट एंड स्टिल it is this is a first generation antipsychotic and still it is used in practice. Okay, so it was the first antipsychotic due to its sedative and calming effect without significant loss of consciousness leading to deinstitutionalization. So इससे क्या हुआ कि अगर पेशेंट को घर में रह के भी दवाई ले रहा है, वो शांत हो सकता है, तो उसको असाइलम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, देन विद टाइम आपके और एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स केम इनटू प्ले, आपके बेंजोडाइजेपिन और ये सब चीजें में आए. और विद टाइम थेरेपीज का रोल आया कि सीबीटी और एविडेंस बेस्ड थेरेपी जिन्होंने टाइम लिया. ठीक है, ईसीटी इज समथिंग जो कि डेवलप बाय सरलेटी एंड बिनी. आपका क्वेश्चन आ सकता है हु डेवलप ईसीटी. तो इट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन, कैटाटोनिया, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. ईसीटी की स्टोरी ये है कि लोगों ने ये देखा था कि जो पेशेंट को सीजर डिसऑर्डर होता है वो थोड़े काम हो जाते हैं सीजर आने के बाद, तो उनमें ये साइकाइट्रिक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते इतने ज़्यादा. तो उन्होंने यही फंडा लगाया कि अगर हम जो एक्टिवली साइकोटिक पेशेंट है, बहुत एग्रेसिव है, हम उनको बाहर से सीजर इंड्यूस करें, क्या वो पेशेंट शांत होंगे. और वो किया गया तो उसके अच्छे रिजल्ट देखे गए. ठीक है, अभी तो आपका क्या बोलते हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिससे कि अच्छे डायग्नोसिस बन सकते हैं. आपके नॉन इन्वेजिव ट्रेन स्टिमुलेशन भी जैसे टीएमएस और ये सब आरटीएमएस वगैरह, इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है. ठीक है, जैसे जैसे साइकाइट्री केम इनटू फ्लो, एक एंटी साइकाइट्री मूवमेंट भी आया. ठीक है, कुछ 2-3 साइंटिस्ट हैं ना. दिस इज बिकॉज देयर वर हॉस्पिटल्स, देयर वर असाइलम्स जहाँ पे पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. ठीक है, तो उन लोगों ने एंटी साइकाइट्री इसीलिए प्रोपोगेट किया गया कि पेशेंट का एक डिग्निफाइड तरीके से चीजें आए. फिर धीरे धीरे उसका कंसेप्ट चेंज हुआ
सो आपका क्या बोलते हैं कि एक माइकल फोकॉल्ट जो थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल साइकाइट्री को क्रिटिसाइज किया कि पेशेंट्स को चेन करके नहीं रखना है, कि पेशेंट को वहाँ पे बंद करके रखते हैं, उनको ढंग से नहीं रखा जाता है। देन थॉमस सजाज जो थे, उन्होंने अब कुछ चीजें इसकी सही भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं। उन्होंने साइकाइट्रिक इलनेस को जैसे मिथ ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, उन्होंने इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट साइकाइट्री का हटा दिया। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो आपका सोशल या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसी की वजह से है, लोगों को डिप्राइव करके रखा जाता है बेसिक चीजों से, उनको मारा जाता है, तो इस वजह से साइकाइट्रिक इलनेसेस आती है, ठीक है। अगेन आर.डी. लैंग ने बोला कि स्किज़ोफ्रेनिया वाज रिएक्शन टू सोसाइटल ऑप्रेशन रेदर देन अ डिजीज, सो दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल, ओके। तो अभी भी देयर आर मेनी पीपल स्पेशली इन हॉलीवुड, देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जो कि डिप्रेशन या उन सबको बायोलॉजिकल नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट साइकाइट्री की हिस्ट्री इंडिया में क्या थी। अगर हम अपने आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करें, जैसे कि चक्रा या सुश्रुता संहिता है, तो उन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशन या कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं साइकाइट्रिक इलनेस के, ठीक है। सेम उन्होंने सीजर टर्म या स्किज़ोफ्रेनिया नहीं टर्म यूज किया होगा, उन्होंने कुछ और टर्म, संस्कृत टर्म यूज किया था, जो आपका सीजर डिसऑर्डर को डिफाइन करता है, कुछ कुछ सिम्टम्स जिसके स्किज़ोफ्रेनिया जैसे होंगे। इंडिया की बात करें तो बॉम्बे एंड कोलकाता वेयर दी पायनियर सिटीज जहाँ पे साइकाइट्रिक कोई एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ था। इनिशियली ये इंस्टीट्यूट सिर्फ यूरोपियन पेशेंट के लिए या फिर जो जिन्होंने कॉलोनाइजेशन किया था इंडिया के लिए उनके लिए था, बट लेटर ऑन इट बिकेम ओपन फॉर ऑल ऑफ द कंट्री, ठीक है। फर्स्ट मेंटल असाइलम एट रांची वाज ओपनड इन 1980 एज अ हॉस्पिटल फॉर यूरोपियन पेशेंट। फिर आपका निमहैंस 1974 में बेंगलुरु में स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। पहले इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बोलते थे, जिसका नाम आराम से निमहैंस पड़ा 1974 में, ठीक है। अगर एक्ट्स की बात करें तो 1912 में इंडियन लूनेंसी एक्ट था, फिर 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया और 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आपका बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करता है पेशेंट्स के राइट्स को, उनकी डिग्निटी को, कैसे पेशेंट को किसके टर्म के अंडर एडमिट करना है, किस क्लॉज के अंडर एडमिट करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट CIP रांची लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट निमहैंस लुक्स लाइक, ठीक है। नाउ विल सी कि क्या कंट्रीब्यूशन किया है साइकाइट्री ने सोसाइटी को। सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ केयर। सो वी हैव डेवलप द एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है कि किसी सिम्टम आया, उसको हमने दवाई दी, उससे वो सिम्टम रिजॉल्व हुआ, तो इस सब चीज़ों ने आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट आउटकम प्रोवाइड किया है साइकाइट्रिक इलनेस के लिए, ठीक है। देन आपका इंटीग्रेशन ऑफ जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्रिक यूनिट्स, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल पेशेंट को सेग्रीगेट करने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ही, जो बड़ा आपका मल्टी फंक्शनल हॉस्पिटल है, उनके अंदर ही साइकाइट्री की सब यूनिट्स और ये सब चीज़ें आई, जिससे कि क्या बोलते हैं कंसल्टेशन लाइजन बना रहे कि विद इन आपके हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि इन पेशेंट को अलग तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है, विच रिड्यूसेस रिलायंस ऑन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल केयर। देन स्टिग्मा और क्या बोलते हैं रिड्यूस किया है और मेंटल हेल्थ प्रमोट किया है, ठीक है। बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है अक्टूबर में, तो इससे क्या होता है कि information about what actually mental health is, information about what mental health illnesses are and how to cope with them, how to treat them, and most importantly कि treatment possible है, कि जितनी जल्दी आएंगे उतनी अच्छी prognosis होगी, ठीक है। Increase public awareness through World Mental Health Day and campaigns promoting mental well-being. Destigmatization of mental illness through education, advocacy, and public policy changes. Efforts to normalize psychiatric care as part of overall healthcare, encouraging people to seek help without fear or discrimination. देन लीगल एंड एथिकल इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो MHCA 2017 है वो आपका पेशेंट राइट्स के और उनका ह्यूमन ट्रीटमेंट को आपका गाइड करता है। देन फोरेंसिक साइकाइट्री वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत बार पेशेंट्स इसको एज अ लीगल डिफेंस यूज कर सकते हैं इंसैनिटी को, कि हम कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है फिटनेस टू स्टैंड ट्रायल में, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत आती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइकाइट्री हेल्पिंग इन क्रिमिनल केसेस वेयर मेंटल इलनेस इज अ फैक्टर। मैकनॉटन्स रूल आप सबको पता है, यू ऑल नो दैट, कि कौन बताएगा? फोरेंसिक में नहीं पढ़ा मैकनॉटन्स रूल? अभी आप कौन से ईयर में? ठीक है, चलिए आप मैकनॉटन्स रूल पढ़ के मुझे बताओगे, ठीक है। एथिकल गाइडलाइंस फॉर इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन, कॉन्फिडेंशियली एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट। देन रोल इन सुसाइड प्रिवेंशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, बहुत सारी सुसाइड हेल्पलाइन है,
बहुत सारे ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप पेशेंट उनको रीच करके अपनी क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Crisis center, suicide helpline and emergency psychiatric services, suicide prevention strategies including risk assessment and community outreach program, training for healthcare professionals and teachers and law enforcement in recognize and responding to mental health crisis. नेक्स्ट है कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, जैसे कि जो भी आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उनका टाइमली डायग्नोसिस बनना, उनका टाइमली थेरेपी या ट्रीटमेंट शुरू करना, अगर कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, इन सब चीज़ को प्रोपोगेट करना, ठीक है। पेरेंट्स और स्कूल को और टीचर्स को गाइड करना कि बच्चों को कब स्पेशल अटेंशन देनी है, कहाँ पे किस बच्चे को कितना टाइम देना है, ठीक है। इन हैंडलिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज, सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, अब्यूज और फैमिली डिस्ट्रक्शन। सिमिलरली आपका एडिक्शन मैनेजमेंट में भी आपका साइकाइट्री का रोल है, ठीक है, कि डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, आपका क्या बोलते हैं पेशेंट को कब रिलैप्स के लिए कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे थेरेपीज उनके लिए कंडक्ट करनी है, कौन सा एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में है या विड्रॉल में पेशेंट है तो कब क्या ट्रीटमेंट देना है, तो ये सब चीज़ें भी साइकाइट्री में कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। It plays a crucial role in de-addiction by providing comprehensive assessment, diagnosis and management of substance use disorder. It integrates pharmacological treatments such as detoxification and maintenance therapies with psychological intervention like CBT and motivational enhancement therapy. Overall, psychiatrists have also helped to address co-occurring mental health disorder, reducing relapse risk and improving overall well-being, or contribution to policy making, community program and rehabilitation efforts to promote long-term recovery and social integration. You comfortable? I'll read like this, okay? सो उसके बाद आपका वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ की बात आ गई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कि आपका कैसे वर्क लाइफ को और आपकी फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है। और जो बर्न आउट हो जाते हैं पेशेंट्स को, सॉरी जो एम्प्लॉयज को, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट बायोसाइकोसोशल फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। हाउ इज गोइंग टू कनेक्ट, इसको कनेक्ट करने के लिए किसी को बुला दो यार, ठीक है। कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस है उसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये तीन आपस में तीनों मिलके भी इंडिविजुअली भी रोल है और तीनों के तीनों जब ओवरलैप करते हैं तो इस वजह से आपकी मेंटल इलनेस की इटियोलॉजी जो होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है। ये मॉडल दिया था जॉर्ज एंजल ने 1977 में, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो आपका क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जेनेटिक्स आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस होता है वो आ जाएगा, एंड थर्ड आपका ब्रेन की कोई स्ट्रक्चर अनॉमली तो नहीं है, कभी कभी कुछ इन्फेक्शियस पैथोलॉजी हो गई, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करें कि बहुत फैमिली स्टडीज़ हुई हैं, बहुत ट्विन स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो किसी भी फैमिली मेंबर्स को अगर साइकाइट्रिक इलनेस है तो उसमें जो उसके नेक्स्ट जनरेशन है या उसके क्लोज रिलेटिव है उनमें जो आपका परसेंटाइल होता है वो जनरल पॉपुलेशन से बढ़ जाता है, ठीक है। ट्विन एंड अडॉप्शन स्टडी शोज जेनेटिक हेरिडिबिलिटी फॉर मैनी मेंटल इलनेस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये स्किजोफ्रेनिया के लिए है, इसमें अगर आप देखेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 48% चांसेस बढ़ जाते हैं कि होने के स्किजोफ्रेनिया इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन। अगर दोनों पेरेंट को साइकोटिक स्किजोफ्रेनिया है तो 46% चांसेस है। डाइगोटिक ट्विंस हैं या सिबलिंग्स ऑफ वन अफेक्टेड पेरेंट्स है तो उसमें थोड़ा कम हो गया, तो ऐसे ऐसे आपका चांसेस कैसे घट रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सबसे ज्यादा आपका रोल देखा गया है इलनेस का जेनेटिकली पास ऑन होना। सिमिलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो डोपामीन, यू शुड रिमेंबर, मेजर कल्प्रिट डोपामीन का नाम आप हर जगह सुनेंगे, चाहे वो स्किजोफ्रेनिया हो, चाहे वो आपका सब्सटेंस यूज हो, ठीक है। सेरोटोनिन डिप्रेशन, ओसीडी वगैरह में ज्यादा सुनने को मिलेगा। सिमिलरली नॉन एपिनेफ्रिन आपका स्ट्रेस रिलेटेड है, कॉर्टिसोल अनदर हार्मोन जो स्ट्रेस रिलेटेड है, ग्लूटामेट एंड गाबा अगेन आपके जो सब जगह रोल डिप्रेशन में एंजाइटी में रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू कैन सी डोपामीन आपका इन जनरल प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, यूफोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉरएपिनेफ्रिन आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है। एंड सेरोटोनिन वेलबींग, अच्छा प्लेजर रिलैक्सेशन के लिए। इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो डोपामीन में आपका अगर बढ़ गया एक्सेस में तो अग्रेसिव हो सकता है पेशेंट, ठीक है।
और अगर सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है कि जो हाई आपको सब्सटेंस से मिलता है वो नेचुरल हाई से पेशेंट को नहीं मिल पाता, तो वो वापस एक कंपल्सिव साइकिल में आ जाते हैं। सिमिलरली नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ गया तो आपका ऑटोनॉमिक सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, चेस्ट पेन, ट्रेमल्स, ट्रेमलेसनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेरोटोनिन अगर कम हो गया तो आपको डिप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। फिर आ गया ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्पेशली लिम्बिक एरिया, जो लिम्बिक कॉर्टेक्स, लिम्बिक एरिया है ब्रेन का, जैसे एमिगडाला है, हाइपोकैम्पल है, तो इन सब का इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, तो इसमें फियर रिस्पॉन्स, मेमोरी डेफिसिट, एंजाइटी वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इम्पल्स कंट्रोल वगैरह या फिर स्किजोफ्रेनिया में भी अफेक्टेड देखने को मिलता है। वैसे ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका ओसीडी में अफेक्टेड होता है, ठीक है। जस्ट डायग्राम ऑफ शोइंग कि कैसा इनसाइड ऑफ ब्रेन है और क्या क्या आपके जो स्ट्रक्चर है आपके एसोसिएटेड है बिहेवियर और इमोशन से। नेक्स्ट वी हैव हार्मोनल और इम्यून सिस्टम, जैसे एचपीए एक्सिस में आपका डिस्टर्बेंस आता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो कॉर्टिसोल इज समथिंग विच इज लिंक्ड विद स्ट्रेस, डिप्रेशन, ग्रीफ रिएक्शन में ज़्यादा बढ़ा होता है। सिमिलरली थायराइड की बात करें तो हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म मूड और इफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत बार हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आर सीन टू बी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। दिस इज योर एचपीए एक्सिस। देन विल कम टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, ये हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव थॉट पैटर्न, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वो क्या है, विल सी देम, ठीक है। पुअर इमोशनल रेगुलेशन लिंक टू मूड एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, किसी का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ओवरऑल कम है, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसी का जो कॉग्निटिव चीज़ों को देखने का तरीका ही नेगेटिव है कि भैया हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, हमेशा या तो मेरे साथ गलत ही होता है, ये सब चीज़ें अगर देखने को रखता है। किसी की कोपिंग मैकेनिज्म पुअर है, rather than facing this आप भागना प्रेफर करते हैं चीज़ों से, तो दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज में, ओके। Negative thought patterns contribute to depression and anxiety. Poor emotional regulation is linked to mood and personality. Learned helplessness, persistent feeling of powerlessness is associated with depression. जैसे कि ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के, जैसे ऑल और नथिंग में पेशेंट क्या होता है, या तो माई वे और हाईवे, या तो ये राइट है या रॉन्ग है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम देर आर ग्रे एरियाज जिसमें हमको अपनी चीज़ों को देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन, ड्राइंग अ फॉल्टी कंक्लूजन अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन वन एग्जाम्पल, कि ये गलत, ये उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो उसके फैमिली के सभी लोग गलत हैं, ठीक है। मेंटल फिल्टरिंग में क्या होगा, फिल्टर लगा दो, कोई भी पॉजिटिव चीजें होंगी तो नहीं नहीं मेरे साथ तो गलत ही होगा, नेगेटिव चीजों को आप ज्यादा फिल्टर आउट इन कर लेंगे और पॉजिटिव चीजों को फिल्टर आउट कर लेंगे। सिमिलरली डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, अगेन एक्नॉलेजिंग द पॉजिटिव बट रिजेक्टिंग इट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग। इफ यू लैंड अ कॉम्पिटिटिव जॉब बट यू विल एट्रीब्यूट कि आपने अपनी मेहनत से नहीं, है तो बस लक था इस वजह से हो गया, शायद दूसरा वाला ज्यादा खराब था मुझसे इस वजह से मुझे ये जॉब मिला है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। देन माइंड रीडिंग में फ्यूचर का अजम्पशन रखना, अरे मैंने आज मुझे लेट हो गया अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, ठीक है। यू सी अ स्ट्रेंजर विद एन अनप्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन एंड अज्यूम दैट दे आर नेगेटिवली थिंकिंग अबाउट यू। पर्सनलाइजेशन और ब्लेम करना, देन शुड स्टेटमेंट, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था, रेदर देन कि ये क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव मैग्नीफाइंग दी, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंड मिनिमाइजिंग दी पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज, दीज आर समथिंग जो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और जो सीबीटी जो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं वो इन्हीं डिस्टॉर्शन पे काम करती है, ठीक है। आपको ऑल्टरनेटिव एस्पेक्ट्स देगी कि ये चीजें अगर कोई किसी वजह से हो रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या रीजन हो सकते हैं। देन अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है आपका क्या, which one was it? पर्सनालिटी ट्रेट्स, somebody can do it, ठीक है। जैसे कि हाई न्यूरोटिसिज्म है वो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ, अगर परफेक्शनिज्म है या फिर लो सेल्फ एस्टीम है, ये आपके डिप्रेशन के साथ साथ आप उसके साथ देखने को मिलते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। इम्पल्सिविटी ज़्यादा है, किसी को फटाक से वो करना है, नोवेल्टी सीकिंग, नई नई चीज़ें सीखनी है, तो ये आपका क्या बोलते हैं सब्सटेंस यूज के साथ ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक। देन यू हैव अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज है, नेग्लेक्ट है, ट्रॉमा है, ये इंक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन, पीटीएसडी या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिमिलरली पेरेंटल अटैचमेंट स्टाइल कैसा है, अगर इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अगर आपके फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
अभी हम सोशल फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। देयर माइट बी फ्यू फैक्टर्स जो आपके साइकोलॉजिकल और सोशल आपको एक जैसे लगे, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इश्यूज अपने आप में वल्नरेबिलिटी बढ़ा देता है मेंटल इलनेस की, ठीक है। दूसरा कि पेशेंट को लो एक्सेस टू हेल्थ केयर है, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ें कल्चरली एक्सेप्टेबल इतनी ज़्यादा है कि वो इलनेस को भी नेग्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। रिड्यूस एजुकेशन अगर नहीं है तो आपका क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशन अपॉर्चुनिटीज़ को ये सब चीज़ें कम करता है। देन फैमिली सपोर्ट एंड सोशल सपोर्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट आपका कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जबकि स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट इंप्रूव कोपिंग मैकेनिज्म। सिमिलरली कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ कल्चर स्टिग्मा होते हैं कि हम जो हेल्प सीख करने के लिए ही नहीं जाएंगे, ठीक है, कि वहाँ तो हमारे घर वाला पागल थोड़ी ना, हम क्यों जाए साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है। अर्बन एंड रूरल लिविंग, अब हर किसी के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, ठीक है। अर्बन लिविंग को बोला जाता है कि ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो ये ज़्यादा बर्नआउट और मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ते हैं। अगेन माइग्रेशन इज अनदर वो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करता है साइकाइट्रिक इलनेस को। एक बड़े रीजन से आप दूसरी जगह ऑल टुगेदर माइग्रेट कर रहे हो, आपके कल्चरल डिफरेंस आएंगे, लैंग्वेज डिफरेंस आएंगे, आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करेंगी मेंटल इलनेस को, ठीक है। देन लाइफ स्ट्रेसर एंड ट्रॉमेटिक इवेंट, डाइवोर्स है, किसी कुछ मेजर लॉस हुआ है लाइफ में, कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ गया अचानक से, तो ये सब चीज़ें भी आपका आगे कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। वॉर, डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजी स्टेटस इंक्रीजेस पीटीएसडी एंड डिप्रेशन रिस्क। सो दिस इज व्हाट बायोसाइकोसोशल मॉडल लुक लाइक, ठीक है। अब इन तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर होता है तो आपका मेंटल इलनेसेस को क्या बोलते हैं की तरफ प्रीडिस्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। दिस सेकंड टॉपिक इज फिनिश, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, ठीक है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज दिस अ वेरी बेसिक थिंग। ऑर्गेनिक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर इज समथिंग जो आपको इमरजेंसी में देखने को मिलेगी। जब कभी आपकी इमरजेंसी पोस्टिंग होती है तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये मेडिसिन में जाना है कि साइकाइट्री में जाना है पेशेंट। सो दीज इलनेसेस आर समथिंग विच रिक्वायर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और इनको हो सकता है इमीडिएट मेडिकल और आईसीयू ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़े, ठीक है। When we talk about organic psychiatric illness, they refer to mental health condition caused by identifiable brain dysfunction due to any structural, metabolic or biochemical abnormality. These disorders typically arise from neurological diseases, brain injuries, infection, toxins or any systemic illness, ठीक है, and they are not attributed to psychiatric illness. कुछ चीजें याद रखिए, कोई सडन ऑनसेट आपको कोई साइकाइट्रिक इलनेस मिल रही है, विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स पेशेंट अबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, उससे पहले बिल्कुल ठीक था, तो यू शुड थिंक कि ये कोई ऑर्गेनिक साइकाइट्रिक कॉज तो नहीं है। उसमें आपका थॉरो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट जरूरी है। वहाँ पे साइकाइट्रिक का रोल में भी थोड़ा सा आ सकता है कि पेशेंट को थोड़ा काम डाउन करना है, कोई साइकोटिक एक्टिव साइकोटिक सिम्टम है उसको काम डाउन करना है, बट अंडरलाइन कॉज अगर आपका सिस्टमिक है तो उसको ट्रीट करना जरूरी बनता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड की आपकी इलनेस की, तो आपका ओवरऑल 55 मिलियन पीपल्स आर लिविंग विद डिमेंशिया, एंड सिमिलरली डेलीरियम एंड डिमेंशिया आर टू थिंग्स। डेलीरियम तो आपको किसी भी एज में मिल सकता है, डिमेंशिया ज़्यादातर ओल्ड एज में मिलता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो आपका डेलीरियम की वजह से आपका अक्यूट सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। Hospital prevalence of delirium is 10 to 30%, especially in elderly patients. ICU delirium आपका 50 to 80% है, पोस्ट ऑपरेटिव delirium है, तो इसमें भी क्या होता है कि आपका एक तो ऑल्टर्ड स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा पेशेंट को, स्पेशली इन द इवनिंग और ज़्यादा होगा ऑल्टर्ड स्टेटस, पेशेंट पहचानेगा नहीं किसी को, अजीबोगरीब बात करेगा, हेलुसिनेशन, स्पेशली विजुअल हेलुसिनेशन या टैक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिल सकते हैं, तो उसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं कहीं भैया साइकोटिक तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं आ गया, बट जबकि कॉजेज कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। या फिर अल्कोहल विड्रॉल में डेलीरियम देखने को मिलता है, तो वो भी आपका आईसीयू एडमिशन डिमांड करता है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन देखने को मिलता है 30 to 50% पेशेंट में। अल्कोहल रिलेटेड ब्रेन डैमेज, स्पेशली वर्निकेज एंड कॉर्सोकॉफ आपका 10 to 20% में है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी इज समथिंग जो कि वेरी कॉमन, और इसके बाद बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली टीबीआई के बाद आपके एग्रेसिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। साइकोटिक सिम्टम आपके पोस्ट एपिलेप्सी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के बाद। इटियोलॉजी क्या हो सकती है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की?
सबसे पहला इंपॉर्टेंट वेस्कुलर डैमेज, ठीक है, आपका ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो गया ब्रेन में, ठीक है, तो ये आपका कंडीशन लाइक स्ट्रोक, TIA, क्रोनिक हाइपरटेंशन अगर हुआ तो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, जैसे कि आप डिमेंशिया में देख सकते हो। अल्जाइमर्स डिमेंशिया तो फिर भी आपका लेट एज में आता है, ठीक है, लेकिन फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया या फ्रंटल लोब का जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको एज अर्ली एज 40 ईयर्स पे भी देखने को मिलते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। फ्रंटल लोब डिमेंशिया में आपका सिम्टम भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे होंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंट ऑल्टर्ड बिहेवियर होगा, हाइपर ओरैलिटी हो जाएगी, ठीक है, डिसइनहिबिटरी बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो लर्न आपका मेमोरी वाला पार्ट में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपके उसके बिहेवियरल पार्ट में ध्यान जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन जैसे कि आपके मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, प्रायन डिजीज या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV कंडीशन है, तो इसमें भी साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, अगर कोई आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है, SLE या कुछ, तो उसमें भी आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। देन कुछ हेरिडिटरी कंडीशन है, बर्थ डिफेक्ट्स हैं, उसमें भी आपके मेंटल रिटार्डेशन और ये सब पहले से ही मिलेंगे आपको। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट्स और फॉल्स कैन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डेफिसिट, ठीक है। देन न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस आपका किसी और इलनेस की वजह से, जैसे पार्किंसंस में आप देखो, ठीक है, अगर आप उस एंटी पार्किंसन की जो दवाइयाँ देते हैं तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं। बहुत एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयाँ कुछ होंगी जिसमें आपको साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस में भी हो सकता है। देन यू हैव कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, कोई मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डिसफंक्शन, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमा में पेशेंट बहुत बार आपको थोड़ा ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ मिल सकता है। हाइपोक्सिक इंजरी हुई है ब्रेन में, उसमें बिहेवियरल सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जैसे स्टेरॉइड आपका पेशेंट ज़्यादा ले रहता है तो उसमें अग्रेशन और ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। कैनबिस की वजह से बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हमारे कॉमन ऑर्गेनिक साइकाइट्रिक डिजीजेस हैं, नाम बस देख लीजिए। डेलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर यानी कि मेमोरी की जो दिक्कत करता है, ऑर्गेनिक साइकोटिक मूड एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मेंटल इलनेस एंड न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू सिस्टमिक इलनेस। एक एक लाइन। डेलीरियम में क्या होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन, स्पेशली इन द इवनिंग आवर्स, सनडाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है उसको, ठीक है। ये आपका इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक कॉज, सब्सटेंस की वजह से हो सकता है। डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी एंड बिहेवियर ड्यू टू न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस। एमनेस्टिक डिसऑर्डर में आपका मेमोरी इंपेयरमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कॉर्सकोफ और वर्निकेज में अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल यूज की वजह से मेमोरी बॉडी आपका जो होता है थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से आपका ब्रेन में डैमेज हो जाता है, ठीक है। देन आपका ऑर्गेनिक मूड डिप्रेशन और मेनिया कॉज बाय अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। सिमिलरली साइकोटिक डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आपका सब्सटेंस विड्रॉल में हो सकता है, एपिलेप्सी के पेशेंट में हो सकता है। ऑर्गेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्पेशली आपका ब्रेन डैमेज या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद, ठीक है। फिनिस केज करके एक आदमी था, बोलते थे कि वो ही वाज वेरी काम एंड एवरीथिंग, उसका बहुत ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ, एक आयरन रॉड था उसके हेड में इंजर कर गया। he recovered from the injury, but उसकी personality drastically change हो गई, he started being very aggressive, very violent later on, ठीक है। Then you have epileptic psychosis, substance induced, because of जैसे hepatic encephalopathy में भी patient आपका altered behavior के साथ present कर सकता है। hypothyroidism है, uremic encephalopathy है। This is what these phineas case का जैसे जो injury हुआ था, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे आपका ऑर्गेनिक ब्रेन उसमें, ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, रिड्यूस अटेंशन स्पैज्म, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, seen in dementia and delirium. Then you can have altered consciousness, this is very important, ठीक है। fluctuating level of consciousness, confusion and disorientation, ये जैसे मैंने आपको पहले बोला था, acute patient आ रहा है फटाक से आप मतलब विद इन 24 आवर्स की हिस्ट्री है और उसमें सिम्टोमेटिक चेंजेस हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू सस्पेक्ट कि कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, ठीक है। एल्डरली, स्पेशली एल्डरली फीमेल में UTI की वजह से डिलीरियम बहुत कॉमन देखने को मिलता है, तो अंडरलाइन पॉजिटिव फैक्टर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। देन साइकाइट्रिक सिम्टम में आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग, एग्रेशन, एपैथी कैन बी सीन, ठीक है। साइकोटिक सिम्टम में अगेन आपका हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, पैरानोया एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो करना ही है इस पेशेंट में, ठीक है ना। ट्रेमर हो सकते हैं, सीजर हो सकते हैं, अटेक्सिया, मूवमेंट डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बिहेवियरल चेंजेस अगेन आपका एजिटेशन, इम्पल्सिविटी, सोशली विड्रॉल पेशेंट है। मोटर एंड सेंसरी डिफिशिएंट एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस।
इवैल्यूएशन में कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट कि ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन कैसा है उसका, कोई एसोसिएटेड और साइकेट्रिक इलनेस और एसोसिएटेड मेडिकल या सर्जिकल इलनेस तो नहीं है, कोई हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली में डिमेंशिया की या इन सब चीज़ों की हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में रूल आउट, अगर आपको फिजिकल जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में अनीमिया, जॉन्डिस या कुछ मिल रहा है, ठीक है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में कोई और कंडीशन इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आपको चेक करनी है, ठीक है। एमएससी की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन, फिर भी आप फटाफट इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का कैम्प्ड है कि डिसेबल्ड है, ठीक है, जनरल अपीयरेंस में कैसा दिख रहा है, एजिटेटेड तो नहीं है या बिल्कुल रिटार्डेड तो नहीं है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी, स्पीच में क्या है, डिसआर्थरिया तो नहीं मिल रहा है, स्पीच प्रेशर तो नहीं है, या फिर वो क्या बोलते हैं आपको समझ में ही नहीं आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिबल ही नहीं है स्पीच, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। इमोशनल लेबिलिटी, एपैथी, ये सब चीज़ें आपका मूड इफेक्ट वाला पार्ट में आ गया। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और हेलुसिनेशन, परसेप्शनल अबनॉर्मलिटीज में स्पेशली पिकिंग बिहेवियर देखोगे आप डेलीरियम के पेशेंट में, लगेगा स्किन से कुछ पिक कर रहे हैं या हवा में थ्रेड पकड़ के उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये विजुअल हेलुसिनेशन बहुत कॉमन होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन कॉमन होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज मोर कॉमन विद स्किज़ोफ्रेनिया, ऑलराइट। इंसाइट और आपका कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब रहेंगे, आपका अटेंशन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहेगा, मेमोरी डिस्टर्ब रहेगा, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहेगा, इंसाइट और जजमेंट पुअर। कुछ कुछ टेस्ट हैं वो ध्यान में रखिए, जैसे कि एमएमएससी है आपका, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, तो ये आपका डिमेंशिया के और डिलीरियम पेशेंट में कॉग्निटिव फंक्शंस टेस्ट करता है। सिमिलरली मोका है, ठीक है, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट, ये आपका अगेन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एंड ड्रॉ क्लॉक टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत सिंपल वो है, जो कि डिमेंशिया या फिर कोई भी आपका स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी ब्रेन में तो नहीं है। आप उसमें आपका टाइम का पता चल जाएगा कि पेशेंट को टाइम का अंदाजा है कि नहीं, उसकी क्या बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी कितनी सही हो रही है, तो माइन्यूट एक्टिविटी कितनी सही हो रही है। ड्रॉ क्लॉक टेस्ट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टेस्ट, ओके। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या कराएंगे ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली सीबीसी में आपको कोई इन्फेक्टिव कॉज तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है जिसकी वजह से आपका कॉग्निशन प्रॉब्लम कर रहा है, एलएफटी एंड केएफटी टू इवैल्यूएट हिपैटिक या रीनल इंसेफेलोपैथी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस तो नहीं है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, विटामिन D12, B12, D3, थायमीन, ठीक है। एंड डिटेक्ट सब्सटेंस इंड्यूस साइकेट्रिक्स, उसके लिए टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, यूरिन फॉर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। लंबा पंक्चर टू रूल आउट एनी अदर आपके एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसी चीज तो नहीं है। then comes the role of न्यूरो इमेजिंग, सीटी स्कैन चाहे आप कॉन्ट्रास्ट के साथ कराएं, नॉन कॉन्ट्रास्ट कराएं, ठीक है। एमआरआई टू रूल आउट कोई और आपका सॉफ्ट टिश्यूज में और कुछ व्हाइट मैटर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। देन ईईजी टू रूल आउट कि आपका एपिलेप्टी, सीजर डिसऑर्डर की वजह से तो बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एंड देन यू हैव पैटर्न्स एस्पेक्ट आल्सो। दिस इज हाउ द एडवांस आपका एंसेफेलोपैथिक ब्रेन दिखता है, दिस इज नॉर्मल ब्रेन। डिमेंशिया में कैसे आप देखेंगे, गायरी और सल्का एकदम चौड़े से हो गए, ठीक है। दिस इज व्हाट आपका एडवांस सीटी स्कैन में आपका वेंट्रिकल का वॉल्यूम बड़ा है, आपका एनलार्ज सेरेब्रल सल्का है डिमेंशिया के पेशेंट में। दिस इज अबनॉर्मल ईसीजी से देख सकते हैं एपिलेप्टिक फोकस कैसे आ रहे हैं। मैनेजमेंट, रिमेंबर ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जो भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, कोई सिस्टमिक कॉज है उसको ट्रीट करिए। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन ट्रीट करना है, पेन ट्रीट करना है, फीवर ट्रीट करना है। साइकाइट्री की बात करें तो लो डोज एंटीसाइकोटिक टू काम डाउन द पेशेंट, ठीक है ना। एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग डिमेंशिया के पेशेंट में जैसे कि डोनिपेजिल, रिवर्स्टिगमिन है। एंटीबायोटिक टू कंट्रोल इन्फेक्शन, ठीक है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन एजिटेशन के लिए है। इफ एट ऑल रिक्वायर्ड आपका पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन और ये सब है तो उसमें मूड स्टेबलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल है, ठीक है। एंटी कन्वर्जन टू कंट्रोल सीजर, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन अगर आपको लग रहा है हेड इंजरी है उसके, आपको न्यूरोसर्जिकल क्या बोलते हैं कंसल्टेशन लाइजन बनानी पड़ेगी, अगर ज़रूरी है तो ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद जो भी आपका डिमेंशिया डिलीरियम का पेशेंट है उसमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिलीरियम से आपके फैमिली में भी कोई एल्डरली है तो उसको ओरिएंट करना कि आप ऐसे कमरे में रखें जहाँ से खिड़की से धूप आ रही हो, घर में एक रूम पे एक घड़ी रखी हो, ठीक है, कैलेंडर रखा हो, उनको छोटे छोटे कामों में एंगेज कराते रहना, चाहे वो मटर छिल रहे क्यों ना हो या कपड़े तय करना है क्यों ना हो, सो तो माइन्यूट एक्टिविटी एक्टिव रहे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वोकेशनल थेरेपी की रीइंटीग्रेट कर पाए उनको सोसाइटी में वापस, ठीक है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड. So we have read about how psychiatry from
the religious super belief came into existence as a medical specialty. Okay, we read about how the biological, psychological and social factors contribute to the in mental illness. We read about how the psychiatry has contributed to society as a whole, and we also read what are the differences between organic causes of psychiatric illness with that of journal psychiatry. Okay, so after this, the differences, and if you have any question, please let me know.